بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، پی سیریز میپل انٹاریو کینیڈا آپ سے مخاطب ہے۔ آج میرے ایک بہت عزیز دوست اور بہت ہی مخلص دوست مکرم مقصود ساجد صاحب نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا ہے۔ میں کافی دنوں سے ان سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ اصل میں بیسیکلی یہ شمس آباد ایک گاؤں ہے پتوں کی، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو 74 میں جب ایجیٹیشن ہوئی تو اس وقت ان کو پھر ہجرت کر کے لاہور آنا پڑا۔ تو لاہور میں یہ پھر وہ جو الیکٹران میں کام بھی کرتے رہے، الیکٹرانکس میں کام بھی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنا بزنس بھی شروع کیا ٹاؤن شپ میں، پاکستان الیکٹرانکس۔ تو اس کے علاوہ ان کی بڑی جماعتی خدمات بھی ہیں۔ پھر ان کے پیچھے مولوی پڑ گئے، مخالفت، کیونکہ ان کا کاروبار بہت اچھا تھا اور یہ منافع بھی بالکل مناسب لیتے تھے، اور یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے۔ تو اس وجہ سے مولوی پیچھے پڑ گئے، مقابلے کی دکانیں بن گئیں، کوئی بکا کے نام سے، کوئی مدینہ کے نام سے، تو بہت زیادہ، پھر یہاں تک کہ بھتہ خور پیچھے پڑ گئے۔ تو بہرحال انہوں نے بڑے نامساعد حالات کا سامنا وہ کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا، ایک بیٹی اور بیٹے کو، ایک بیٹی ادھر آ گئی، ایک بیٹا پھر وہ ان کے ساتھ آیا۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ خود ہی اپنی تفصیلات بتائیں گے۔ تو جی مقصود صاحب، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خاکسار کا تعارف کروایا ہے۔ تو مزید میں دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خاکسار کی پیدائش خاکسار کی پیدائش گاؤں میں ہوئی تھی، جس کا نام ہے شمس آباد، پتوں کی سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو ہماری تربیت شروع سے ہی اللہ کے فضل سے جماعتی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اچھی گاؤں میں بھی ہمارے پاس مرکز سے نمائندگان آیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا مولوی اسماعیل منیر صاحب کا۔ تو وہ بھی ہمارے گاؤں میں آتے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب وہ پروجیکٹر کے اوپر جماعت کی ترقیات کی جو تصویریں وہ پروجیکٹر کے اوپر آ کے دکھایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ تصویر چل رہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ وہ کمنٹری کیا کرتے تھے۔ بالکل بالکل، میں نے بھی زمانہ دیکھا۔ تو وہ ایک بڑا، اس سے بھی ہمیں بھی ایک بڑا طرح فائدہ ہوتا تھا۔ پھر جب میں نے میٹرک کیا 1973 میں سوری۔ آپ نے خود بیعت کی ہے؟ نہیں، جب میں نے 1973 میٹرک کیا، میٹرک کیا تو پھر اللہ خیر سے مجھے تربیتی کلاس کا بھی موقع ملا، وہاں جانے کا ہوا۔ اچھا 15 دن کی تربیتی کلاس ہوتی ہے، وہ بھی میں نے اٹینڈ کی۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ بتا چلوں کہ وہ ایک سائیکل سفر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے شروع کروایا تھا۔ وہ پہلا وقت تھا 1976 کا جب حضور نے اس کے اوپر حکم صادر فرمایا تھا۔ تو خاکسار نے یہ پہلا سفر اس تربیتی کلاس میں کیا تھا۔ ہم لوگ مربی صاحب کی زیر نگرانی، وہ ہمارے قافلہ کے ساتھ تھے، ہمارے انچارج۔ تو ہم لوگوں نے غالباً وہ طبی جگہ ہے سرگودا کے پاس، وہاں تک گئے تھے۔ ہم ایک دن میں گئے تھے، واپس بھی آ گئے تھے۔ اچھا۔ تو پھر اس طرح جب 74 کی ایجیٹیشن ہوئی تو ہم لوگوں نے ہجرت کی، اتنا حالات خراب ہو گئے کہ ہمیں مجبوراً گاؤں چھوڑنا پڑا۔ تو ہم لوگ لاہور گرین ٹاؤن آ گئے۔ اچھا۔ یہاں ایک لمبا عرصہ گزارا۔ گرین ٹاؤن کے آنے کے بعد پھر میں نے کچھ 2 سال اسلام آباد نیشنل بینک آف پاکستان میں جاب بھی کی ہے۔ اور اس دوران ہم، یہ بات ہے 1979 اور 80 کی، یہ 2 سال میں نے وہاں جاب کی۔ اور اس جاب کے دوران غالباً 1979 کا جو خدام العلم کا اجتماع ہوا تھا روا، تو خاص صاحب نے اسلام آباد سے روا تک کا سائیکل سفر کیا تھا۔ بما 8 خادم ہم لوگ، میں وہ کیا کہتے ہیں، قافلے کا صدر، کیا اسے کہتے ہیں؟ نہیں، اسے کہتے ہیں امیر قافلہ۔ امیر قافلہ، خاصا امیر قافلہ تھا۔ اور میرے پاس ابھی وہ ساری تصویریں بھی بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں۔ میرے سائیکل کے پیچھے پمپ بھی بندھا ہوا ہے، راستے میں کوئی پنچر ہوا تھا، وہاں پر نہیں پڑے، کچھ ہو جائے مر گیا۔ یہ ایک اور بڑا خدمت میں ادھر تھا، اپنا جو مجلس عاملہ تھی ہماری خدام الحمد کی، 2 صاحب ہمارے قید ہوتے تھے، تو ادھر ہمارے اسلام آباد میں بھی ہم نے بڑے کام کیے ہیں، اور مسجد کی ڈیوٹیاں بڑی دی ہیں۔ حضور کے ساتھ ڈیوٹیاں دینے کا حضور تشریف لایا کرتے اسلام آباد نبوہ سے۔
और खाकसार को एक वक्त जब आए तो खाकसार ड्यूटी पे था, तो मरबी अशरफ शफी साहब हमारे मरबी होते थे। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मकसूद ये किसी खादों को भेजो अंदर ना। मैंने कहा मरबी साहब तो खाना खा रहे हैं। कहते आप ही आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो मरबी साहब कहते हजूर क्यों ना जरा थोड़ा दबाना है। हजूर लेटे हुए थे बेड पे। जब मैंने हाथ लगाया तो हजूर फरमाते इसके हाथ बहुत ठंडे हैं। अच्छा। तो मरबी साहब कहते मकसूद आप पीछे आ जाओ। हजूर फरमाते नहीं रहने दे, इसको दबाने दे, जब दबाएगा इसके हाथ खुद ही गर्म हो जाएंगे। अच्छा। तो ये खुराक साहब बड़ा अच्छा एक मौका मिला खुराक साहब को। ये बड़ा आपको बड़ा आपके लिए एजाज़ है। आज़ाद है। फिर ये भी है कि वो हमने एक दफ़ा जब गर्मियों में तशरीफ़ लाए तो हमारा ग्रुप फ़ोटो बना गर्मियों में। तो जब तैयारी होगी मुकम्मल तो हजूर को हजूर जब तशरीफ़ लाए तो फोटोग्राफ से थोड़ी देर लगा दी। हजूर फरमाते मुझे लगता तुम्हारे कैमरा को गर्मी नहीं लगती। तो ये भी एक थी उस वक्त बात हो गई। तो बारक वल्लाह फिर मेरी खास साल को उस वक्त ड्यूटी होती थी मस्जिद लाल मस्जिद में जाने की। मौलवी बड़ी बकवास करते थे। तो लाल मस्जिद फिर मैं जाके कोई जो भी चीज़ें पर होती थी। एक दफ़ा मैं दूर के उधर जा रहा था गेस्ट हाउस, बैकरूम सफ़र करते थे। जब मैं आगे बैठा हूँ तो आगे मौलवी बैठे हुए थे, वही जिनसे मेरी दोस्ती थी लाल मस्जिद वाले। उधर कहते और मकसूद चले हम कादियानियों के खिलाफ लड़ते कर रहे। जब उधर हम गए तो वो इतनी बकवास की। जब वो एक पिंडी का मौलवी है, जब उसकी बारी आई तो उसने इतनी बकवास की तो मैं तो उठ के चला गया। मेरे बर्दाश्त उनको पता था कि आप अहमदी हैं? नहीं अच्छा, उनको मैं तो उसको नहीं पता था। अच्छा अच्छा। अब जब मैं बैंक में तो वो मौलवी एक और बड़ा वाक़या मज़ेदार है। जो वो मौलवी जो बहुत ज़्यादा लंबी ज़बान पर हमारे खिलाफ बोलता था। मेरे बैंक में एक लड़का था वो पिंडी से आता था। उसने मुझे बताया, उसको भी नहीं पता था कि मैं अहमदी हूँ। उसने बताया कि यार वो एक हमारे जो मौलवी बड़े बड़े पाए के मौलवी उनकी डेथ हो गई है। वही मौलवी है जिसकी मैं बात कर रहा था। कहता है लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई है कि उसके डेथ मरने के बाद ना उसकी ज़बान कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई है। उसकी ज़बान अंदर नहीं गई। ये भी खुदा ताला ने कितना बड़ा निशान है। निशान दिखाया है। और मैं तो नहीं देखा लेकिन किसी गैर आज़माद की वजह से ही मुझे मिला। दूसरा मैंने फिर आपको बता रहा था कि उसके बाद मैं बैंक से कुछ वजह से मैंने बैंक छोड़ा, लाहौर आ गए दोबारा इस्लामाबाद से। तो मैंने पहले ज्वाइन की 21 ईयर मैंने पहले जॉब की है। और उसके बाद मैंने 2004 में पहले छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे, मेन कादर रोड टाउनशिप पे। तो वहाँ बिज़नेस को बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा चला। तो उसके बाद कुछ मुखालफत बड़ी शुरू हो गई। मौलवी टाइप लोगों ने शोरूम बना लिए। वो फिर वो ये हमारे जिस तरह ब्रोशर छोटे छोटे होते हैं ना जिसको हम फ्लायर कहते हैं, ये प्रिंट करवा के लोगों के घरों में फेंकते थे, मस्जिदों में देते थे। बड़ी मुखालफत, इतनी मुखालफत हुई कि यहाँ तक कि बत्ताखोरों हमारे पीछे लग गए। तो वो फिर मैं उस साल, ये बात है तकरीबन 2012 की तकरीबन, तो फिर मैंने जलसे पे गया के हजूर की खिदमत में दुआ की दरख्वास्त की मुलाकात के दौरान। तो मैंने कहा हजूर दुआ फरमाया कि मेरी ये जगह सेल हो जाए तो मैं कहीं निकलूँ। तो हजूर ने हुक्म फरमाया कि आप कनाडा चले जाएँ। तो जगह भी सेल होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। वो भी बड़ा खुदावंद की दुआ का असर कि मैं जब पाकिस्तान पहुंचा हूँ तो मेरी नेक्स्ट डे मेरी प्रॉपर्टी की सेल हो गई। बड़ी बात है। तो जो मेरे जेल में थी कीमत इतनी, वो बल्कि उससे 2 लाख ऊपर ही सेल हुई। मतलब नुकसान नहीं हुआ? ना नहीं, अल्लाह के फजल से खलीफा मत की दुआओं का ये कि कितने में सेल हुई थी? वो अच्छी अमाउंट थी मार्केट। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरी जो अमाउंट थी उसके ऊपर मैं कहता था कि 25 लाख ऊपर है, लेकिन वो 27 लाख ऊपर आ गया। अच्छा अच्छा। 25 2 लाख ऊपर आ गया। अच्छा, फिर? तो वो फिर बेची, फिर बच्चों को बाहर भेजा। पहला बेटी तो ऑलरेडी बड़ी बेटी की शादी थी जर्मनी, छोटे बेटों को जर्मनी भेजा आज से 5 साल पहले। बड़े बेटे का फिर उसका उसके अप्लाई किया हुआ था इमिग्रेशन का। उसका इमिग्रेशन का वीज़ा लगा 2020 में 2020 में। वो मार्च में फिर इधर आ गए। तो फिर हम दोनों पीछे रह गए थे मियाँ बीवी। हम लोग फिर दिसंबर 2020 में हम दोनों ने मूव किया वाया US से। तो मैं बीच में ये भी बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वसल से ख़ास सार को जमाती खिदमत का मौका गांव में भी, फिर इस्लामाबाद में भी, और फिर लाहौर में। यही मैं पूछने लगा था। लाहौर में अल्लाह के फजल से मैं जौहर टाउन, हल्का जौहर टाउन में सदर साहब के अमला का मेंबर थ्रू आउट रहा हूँ, जो भी सदर रहे हैं। और तकरीबन 10 साल मैं सेक्रेटरी तरीके जीत रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल मैंने अपने टारगेट पूरे किए हैं। जब ये जौहर टाउन का हल्का, फिर आज से कोई 6 साल पहले
ये हल्का 2 हल्कों में डिवाइड हो गया, एक हल्का जौहर टाउन, दूसरा हल्का बड़ा जौहर टाउन सोसाइटीज़। अच्छा जो जौहर टाउन सोसाइटी के जब इंतखाब हुआ तो खाकसार को एज ए सदर चुना गया। अच्छा तो तब से लेके यहाँ आने तक तकरीबन 5.5 साल खाकसार सदर हल्का रहा। और खाकसार ने अपने हल्के में लाजमी चंदा जात, तरीके जदीद, वक्फे जदीद में नुमाया कारकर्दगी की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट से ओवर एंड अबव अचीव करते रहे हैं। मैं इसे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, आने से पहले 2020 में मेरे हल्के का तरीके जीत का टारगेट 39 लाख था। तो खाकसार ने 44 लाख रुपया उसका इकट्ठा दिया, 39 लाख के अगेंस्ट। तो इस तरह खाकसार को अपनी जो हमारी इमारत है जिसका नाम टाउनशिप है, जिनके अमीर हैं दूसरा माहिद अली खान साहब, तो उनके साथ भी एज ए सेक्रेटरी ज़ियाफ़त खाकसार का मौका मिला। 5.5 साल मैंने सेक्रेटरी ज़ियाफ़त काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम किए। और हमारी जो इमारत टाउनशिप की है वो भी पाकिस्तान में पहली 3 पोजीशनों में लाजमी चंदा जात और तरीके जीत और वक्फे जीत में मिसाल रही है। और बाज़ दफ़ा तो तरीके जीत में तो कई दफ़ा हम अव्वल पोजीशन भी रही है पे आए हैं, और इस तरह लाजमी चंदा जात में भी। तो आपकी जमात वाले तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। हाँ, वो आने से पहले अमीर साहब कहते ना जाओ, आप रह जाओ इधर ही। और मेरे हल्के वाले दोस्तों भी कहते आप ना जाओ, रह जाओ। मैं कहा जमाती काम कभी नहीं रुकते, वो तो अल्लाह के फजल से चलते रहते। मेरे आने के बाद जाने को शायद मेरे से बेहतर आपके पास बंदा आ अच्छा, जाए। कारोबार में आपके साथ कोई 1-2 दिलचस्प वाक़यात भी हुए, वो भी बताएं कुछ। कारोबार में कई दफ़ा मेरे पास से लोग भी आए हैं कि जिनके साइड पे पिस्टल लगा होता था, तो वो डकैत के हिसाब से भी आते थे, डकैती करने भी। लेकिन अल्लाह ताला ने हर दफ़ा महफूज रखा, कोई ना कोई ऐसा बान की वजह कि वो लोग निकल गए वापस। और फिर जब ये पत्ताखोर का आया था, एक वाक़या पेश आया पत्ताखोर, तो उसका फ़ोन आया मुझे 3 बजे, है मेरी गाल सुनी, फ़ोन बंद ना करी। यार मैं 2 दफ़ा फ़ोन मैंने बंद कर दिया। फिर उसने फ़ोन जब मैंने सुना तो कहता मुझे 10 लाख रुपये चाहिए रात शाम बजे तक। मैंने किस चीज़ का चाहिए? कहता तुम्हारे बड़े बेटे का मुझे मुआवजा चाहिए 10 लाख रुपया। अच्छा। तो मैंने कहा अगर ना दे सकूँ तो कहता तुम्हारे दोनों बेटों को उठा के ले जाएंगे, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाहर क्या है वो मामला हमारा वो उसी दिन हम लोगों ने फौरी तौर पे हम लोगों ने घर से शिफ्ट अपने आप को फैमिली को लेके मैं कहीं और जगह पे चला गया। तो बाकी चाबियाँ लड़कों को दे दी। मैंने कहा भी आप खुद ही शोरूम संभालना, 1-2 दिन खोलना। हालांकि वो लड़के सारे गैर हिंदी थे, मेरे साथ जो काम कर रहे थे, लेकिन अच्छे थे। खैर वो करते रहे। मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो आपको किसी को पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। मैंने कहा उनसे पत्ताखोरी से करते करते पुलिस वालों को FIR कटवाई, तो 5 लाख पे डन हो गया। अच्छा। तो 5 लाख पे डन जब हुआ तो फिर कोई दोस्त एक मिल गया, उन्होंने कुछ ऐसे ही एक उसका पता करवाया। वो ये पता लग गया कि ये बंदा जहाँ से उसने फ़ोन किया है ना, उसका खतौनी नंबर क्या है, उसका खसा नंबर क्या है ज़मीन का, ये फैसलाबाद का था, टोबा टेक से। अच्छा अच्छा। तो खैर वो जब ये हमने खबर फेंक दी मार्केट में कि बंदे का जब नेक्स्ट फ़ोन आएगा, जो उसने टाइम दिया था कि फ़लाँ दिन आपने इतने बजे सुबह 11 बजे जब मुझे कॉल करनी है और जिस जगह मैं बताऊंगा उस जगह अपने पैसे पहुंचा देने। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि एक बात मेरी भी है शर्त कि मैं लाहौर के बाद पैसे नहीं दूंगा। कहता नहीं लाहौर में ही लूँगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर वो बात टल टूट गई। लेकिन एक वो खौफ तो रहा ज़हन। वो आया नहीं लेने, फिर नहीं लेने नहीं आया। फिर वो तो डर था कि एक पुलिस को ना उतार दिया। उसने मुझे जब भी पता चला ना कि इनको तो जगह भी पता चल गया है, तो मैंने कहा हम आर्मी की जो इंटेलिजेंस है ना, उसने मुझे बताया, मेरे सोर्सेज है, अब आर्मी की इंटेलिजेंस तुझे पकड़ेगी। अच्छा अच्छा। तू जब भी फ़ोन ऑन करेगा तो ये पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद उसने ये नहीं किया। लेकिन उसका खौफ था हमारे ऊपर ना, क्योंकि कल को कोई भी, जैसे मैं अपने शोर में काउंटर में बैठा हूँ, कोई भी मुझे शूट कर सकता है, सामने बैठा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मकसूद साजिद साहब, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया और बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाए, और आपने बहुत ही मुश्किल हालात का सामना किया। अल्लाह ताला आपका कनाडा आना हर लिहाज से बरकत करे, आपको बहुत ज़्यादा नवाजे, आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और जमात की भरपूर खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।